हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है कि पाक मीडिया शॉक्ड है। क्यों भाई? क्योंकि कनाडा बाउज डाउन इन फ्रंट ऑफ भारत। वाकई में बाव तो करेंगे। अब देखते हैं क्या नई डेवलपमेंट है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं। हमने 41 इनके बोले ना कि डिप्लोमेट्स जो भी हैं इनको हटाओ, यहाँ से निकाल लेके जाओ, और 10 अक्टूबर तक का उनको डेडलाइन भी दे दी है। अब उसके जवाब में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी बोला है कि अच्छा हम वीजा बंद कर रहे हैं सारे इंडियन्स का। चलो देखें। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। So first and foremost, of course, we are in contact with the government of India. We take the Canadian diplomat safety very seriously, and we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations are best when they remain private. पहले कैसे पब्लिक बोला था? As I told you, we are in constant cooperation and dialogue with Serious सी लग रही India. है। We ask them full cooperation on the investigation. We asked full Sridhar, cooperation. and at the Ask, same request time, नहीं। we've been in close contact, continuing to engage on the question of our diplomatic It relations. sounds like you think that there's some way now to stop the expulsion of the Canadian diplomats, but that's 2/3 of the core there. So what impact is that going to have on Canadian citizens and businesses? As I mentioned, we will continue to engage, and it is important that we do so. But as I mentioned many times in many of your questions in the past, it is important that these diplomatic conversations. Do you have any other questions on any other subject? Okay, on Haïti. Okay. उसके बाद बात ही नहीं करना चाहती। Je vais répondre en français 30 secondes, puis après je vais French बोल रही है। Un instant, je vais juste répondre à Christian. Hélène, 30 secondes. On a l'impression que sur l'Inde, vous marchez sur des œufs. Nous sommes dans un moment difficile. Il y a certainement des tensions entre nos gouvernements, mais dans des moments de tension, ce qui est le plus important, c'est de continuer à avoir des gens sur le terrain. Alors c'est pourquoi nous sommes en conversation avec le gouvernement haïtien et par conséquent, nous allons aussi travailler sur la protection de nos diplomates. I think if I can add that in English. So in moments of tensions, because indeed there are tensions between both our government, more than ever it's important that diplomats be on the ground. And that's why we believe in the importance of having a strong diplomatic footprint in India. That being said, we are in ongoing conversations with the Indian government. हम नहीं अलाउ करेंगे, नहीं करना चाहिए मुझे। तो मेलिन जोली है जो कनाडा की शी इज दी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। अच्छा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर है मेलिन जोली। जैसे जयशंकर यहाँ पे है कि भारत के साथ जो हमारे ये प्रॉब्लम है, ऐसी वैसी जो प्रॉब्लम है भारत के साथ, हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग ना प्राइवेटली भारत के साथ बात करना चाहेंगे। क्यों भाई प्राइवेटली? पहले करिए। वही तो जब करना चाहिए था। क्योंकि मीडिया के स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कैनेडियंस भी दे रहे हैं मीडिया में, अब उनकी फट रही है मीडिया में। और ये डिप्लोमेटिक जो लड़ाई है ये हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इंडिया ने बोल दिया 41 डिप्लोमेट्स को निकलो यहाँ से, निकलो, वरना उनका जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है 10 तारीख तक निकलो, वरना 11 तारीख को चला जाएगा। उनका डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं रहेगा। डिप्लोमेटिक स्टेटस यानी कि डिप्लोमेट्स को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। कई सारे फायदे होते हैं डिप्लोमेट में। एयरपोर्ट में भी चेकिंग नहीं होती इनकी। ये सब ना आप डिप्लोमेटिक कुरियर में निकल जाते हैं आपकी, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। और ये म्यूचुअली मतलब अग्रीड अपॉन स्टेप्स होते हैं कि यार हमारे डिप्लोमेट को आप इज्जत देंगे, आपके डिप्लोमेट को हम इज्जत देंगे। ये सब चलता है। अब कनाडा ये कह रहा है कि यार ये तो दिक्कत हो गई, ये तो परेशानी हो गई, अब हमें इंडिया से प्राइवेट में बात करनी है। लेकिन ये मेलिन जोली जो है ना, मैं इनको यही पूछूंगा कि मैडम आपने अपने प्रधानमंत्री को नहीं बोला था क्या, जब उसने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला था कि भारत ने ये खुद भी तो बोली थी, तब ये भी बोली थी, पर उसने बोल दिया कि भारत ने निज्जर को मरवाया है। अब बोल तो दिया, अब शब्द और बाण ऐसे होते हैं कि एक बार चले जाते हैं ना, वापस फिर नहीं वो वापस नहीं आते। बिल्कुल। यू कांट अनसे समथिंग। एक बार आपने से कर दिया उसको, तो अनसे नहीं कर सकते आप। अपोलोजाइज कर सकते हो। वीडियो नहीं है कि आप पीछे चले गए और बोला कि नहीं पिक्चर 10 मिनट पहले से देख लूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब उसने बोल दिया, अब इसमें या तो जस्टिन ट्रूडो माफी मांगे, वही मैंने बोला ना अभी, और पब्लिकली बोले कि हाँ मैंने बकवास करी थी भाई साहब, कभी नहीं बोला। ठीक है, मैं नहीं जस्टिन बोलेगा, ट्रूडो बहुत हूं, दिख रहा है वो।
बहुत उसका दिमाग चढ़ा हुआ है, अकड़ू है, इगोइस्टिक। क्योंकि ये मामला भारत की तरफ से बंद नहीं होगा, जिसने शुरुआत करी है बंद उसी को करना है। बिल्कुल, आपने शुरुआत करी, अब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट में बात करनी है। क्या बात करनी है प्राइवेट में? क्या बात करनी है? जब आपको भारत के ऊपर लांछन लगाना था, तोहमत लगानी थी, वो तो आपने पब्लिकली करी। और पब्लिकली भी कैसे? कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने बोला कि भारत ये गलत है, भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया। अब आपके पास बंदा भी कौन सा? अब आपका गला सूख गया, टेररिस्ट। मैं तो ये चाहता हूं, मैं कनाडा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे भारत ने बोला है कि कैनेडियंस इंडिया में नहीं आएंगे, उनको वीजा नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से भारतीयों के लिए भी आप कनाडा आना मना। मैं कब से बोला ये करो ना, मैं चाहता हूं पूरा सील कर दो। देखा, कोई इंडियन नहीं जाएगा कनाडा। जो चले गए, जिनको सिटीजनशिप मिल गई, उनका मैटर है। नए तौर पे nobody should go, there should be no movement. हमने कल परसों की वीडियो में कहा था, challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. Devan sir responsible नहीं किया कुछ. Because indeed there are tensions between both our governments. More than ever, it's important that diplomats be on the ground, and that's why we believe in the importance of having a strong diplomatic footprint in India. That being said, we are in ongoing conversations with the Indian government, and we will continue to. और ट्रूडो साहब का स्टेटमेंट आया कि we don't want to escalate. हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते हम, तो इसका मतलब है कि ये जो आर्म ट्विस्टिंग हुई है वो थोड़ा सा फल तो दे रहा है, बिकॉज नाउ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज फीलिंग लिटिल हीट कि ये जो उन्होंने शुरू किया था, बहुत होनी चाहिए, इतनी आसानी से होगा तो वो उसको फील कर रहे हैं। मगर मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि शाम तक आते आते ट्रूडो साहब का ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते, अब जो मैटर था उसको वहीं खत्म, अब तो हम करेंगे। मगर ये एक अच्छा इशू इसलिए भी है मुझे, अगर जो इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लग रही है कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं इनको आप सपोर्ट कर रहे हो, इसको आपको बंद करना पड़ेगा, या ये डुप्लिसिटी कम करनी पड़ेगी, आपको इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तब तक यही होगा। ये टाइम है कि इसको ना एक इंस्टेड ऑफ स्कूट एंड शूट करके कि चलो अभी मामला दब गया, बाद में देखेंगे, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसको आप फाइनल सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। आई थिंक इंडिया वांट्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग, अभी उसको करना नहीं चाहता, बिकॉज ये तो खत्म करो, तुम ये नॉनसेंस नहीं चलेगा ज्यादा। गेम तो ट्रूडो साहब ने शुरू किया था, इंडिया अब ये कह खत्म करेगा, ये है उन्होंने शुरू किया, हम खत्म करेंगे। दोबारा आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई ये तो गेम है, कभी इंडिया की गर्दन उनके हाथ में आएगी, कभी उनकी गर्दन हमारी कोई गर्दन नहीं है। जब आप दो मल्ले लड़ते हैं ना, तो कौन किसकी कोई पता नहीं होता, बिल्कुल गेम ऑफ स्किल्स ना। तो अब मुझे लगता है ये जो इनका डिप्लोमेटिक, चूंकि मोदी जी थोड़ा असर्टिव है, तो उनका ये है बहुत अब हम इसको एस्केलेट करेंगे, या तो तुम इन खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन, गर्दन छोड़ेंगे नहीं इस वक्त, नहीं छोड़ेंगे, ये मतलब तुम्हारी पकड़ेंगे इसके बाद सॉल्व करो, ये बार मतलब वही कह रहा हूं, एग्जैक्टली वही है एक मैटर, बाकी तो कोई तो ना बॉर्डर शेयर इंडिया कनाडा या कोई और डिस्प्यूट भी नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई इसके अलावा तो ये बोलते हैं वो तो बड़ी डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, दोनों देशों के बीच में जीरो मूवमेंट, कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल। तब देखते हैं इसको जस्टिन ट्रूडो की जो खाज है ना, इसको जो खुजली मस्ती है बीच बीच में, उसका इलाज है मोदी जी के पास, पाउडर है हमारे पास, पूरा इलाज करेंगे अच्छी तरीके से, डिप्लोमेटिक मुकम्मल इलाज होगा इसका जस्टिन ट्रूडो का। अब ये कह रहे हैं प्राइवेट में बात करनी है, तो भाई साहब प्राइवेट में बात करनी है तो पब्लिक में बकवास क्यों करी थी, ये बता दो। बिल्कुल, कि जब तुमने प्राइवेट में ही करना था तो शुरुआत में तुमने पब्लिक में क्यों बोला, क्यों जाके, और खाली ट्रूडो ने नहीं बोला था, फॉरेन मिनिस्टर जो बैठी लेडी दिखाई थी, इसने भी बोला था, इसकी भी वीडियो है, दोनों ने बोला था अब इनको प्राइवेटली बात करनी है, हम करते हैं तुमसे प्राइवेटली बात। इनकी जो जैसे कह रहे हैं ना खुजली, इनकी खुजली ऐसी निकालेंगे कि भैया इनको इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, और हम छोड़ेंगे नहीं, अब छोड़ना भी नहीं है जब तक एक एक खालिस्तानी के ऊपर एक्शन नहीं लेते, और जिन जिनको बोला था डिपोर्ट करके हमें भेजो, तब तक हमने ये रखना है। अब उनकी जान निकली पड़ी है, क्योंकि डिप्लोमैट्स जा रहे हैं, वहां की पब्लिक और वहां के रिपोर्टर्स उनकी जान खा रहे हैं,
उसको इतना था उस लेडी को कि भैया और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मैं ये इस क्वेश्चन पे नहीं बात करूंगी। उसके बाद भी लोग रिपोर्टर्स यही पूछ रहे हैं। 41 तो जाएंगे नहीं कह रहा है जितने हमारे हैं बिल्कुल तुम्हारे अलाउ करेंगे। वेरी गुड। तुम वो कोई ग्रेट नहीं हो कि तुम्हारे 3 टाइम तुमसे ज्यादा दिमाग चढ़ावा इनका कि पता नहीं हम क्या हैं। तुमने इतने सारे 62 के करीब भेज रखे थे, क्यों भेज रखे थे? जो हमारे 21 है। तो इंडिया ने वही बोला इक्वल होगा पूरा दोनों कंट्रीज का, हर चीज में इंडिया यही करेगा, टोटल इक्वालिटी। सबसे पहले डिप्लोमेट इन्होंने भेजा था ना हमारा वापस, अब उसका जवाब देखो। बिल्कुल। और अगर वीजा हम अभी भी कैंसिल किए हुए हमने, तुम लोग तो आ नहीं सकते, और हमारे कैंसिल कर दो तो बड़ी मेहरबानी। हम तो वेट करें, मैं तो कह रही हूँ करो, मैं तो जिस दिन कभी करेंगे नहीं करेंगे। बस तो यही चलते रहेगा। अल्टीमेटली इंडिया और प्रेशर मारता रहेगा करेंगे जब तक वहां पे लोगों को कंटेन नहीं करते, और हमारे को जो लोग चाहिए वो वापस यहाँ हमारे को भेजते नहीं है। खालिस्तानी लोगों को कंटेन करना पड़ेगा उनको। जिनका बोल रहे थे ना जयशंकर कि हमने कितने लोगों का बोला है कि भैया इनको भेजो यहाँ पर हमारे यहाँ, और ये भेज नहीं रहे हैं। अब तो इन पे और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते रहो जब तक ये वो काम नहीं करते जो इनको बोला गया था। और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ना आ जाए लोग, आएंगे, मजा आ जाएगा। तो हल्का बच जाएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमने डाली हुई है रिक्वेस्ट, ऐसे लग रहा है, और इनको होना चाहिए, इनको इन्वेस्टिगेट करो, ये सारे कौन लोग तुमने रखे हुए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, मजा आ जाएगा यार। अब इनकी जान सूख रही है, ये देखो। अब प्राइवेटली बात करेंगे, करते हैं हम तुमसे प्राइवेट, ग्रे लिस्ट में आ जाए तो हल्का हो जाएगा, मजा आ जाए, वो तो मजा आ जाए। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।